अब बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात चल रही थी, लेकिन यह मुलाकात तीखी बहस में तब्दील हो गई। बातचीत की शुरुआत के 40 मिनट में बहुत शांति रही, लेकिन बाद के 10 मिनट में कई ऐसे मौके आए जब दोनों ही नेता एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते नजर आए। व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इतने तनाव भरे माहौल में बातचीत हुई हो, वो भी कैमरे के सामने, मीडिया के सामने। वहीं इस घटना के बाद दुनिया के कई देश अब यूक्रेन के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा जैसे देशों के साथ साथ यूरोपियन कमीशन ने जेलेंस्की को अपना समर्थन दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जो युद्ध चला आ रहा है उसका भविष्य क्या होगा। क्या यह युद्ध और विध्वंसक हो जाएगा या पूरी दुनिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहस तब शुरू हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विवाद को कूटनीतिक तरीके से हल करने को कहा, जिसके बाद जेलेंस्की ने रूस पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि रूस कूटनीति की बात नहीं मानता। What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. तो वहीं बहस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर सीधा आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लाखों जिंदगियों से खेल रहे हैं, जिनका देश खतरे में है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेल रहे हैं। A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the lives president in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're speak about? gambling with What do you World speak War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? And the president who's trying to save your country. आपने देखा किस तरह से ये बहस होती चली गई। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में बहस यही नहीं रुकी। ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया कि यूक्रेन बड़े संकट में है। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की को अमेरिकी मदद की भी याद दिलाई। You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I, You have a damn we- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If again? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. तो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो बहस हुई, पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा या फिर ट्रंप क्या ऐसा कदम उठाने वाले हैं इस मुलाकात के बाद। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। एम्बेसडर दीपक बोहरा जुड़ चुके हैं, जो कि कई देशों में डिप्लोमेट रह चुके हैं। इसके साथ ही यहां पर आरती टिक्कू जी हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगी। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेघा प्रसाद आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से ये बहस हुई है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के इतिहास में हाल फिलहाल के सालों में ऐसी बहस तो नहीं देखी गई है। आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास इतनी आप ये कहा जा सकता है कि हिम्मत की बात होगी कि ट्रंप के सामने उन्होंने इस तरह से बहस की। विशाल, आप हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी भी व्हाइट हाउस के इतिहास में आज तक ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरीके का दृश्य देखना, कल लोग सिर्फ अचंभित नहीं थे, मतलब शॉक्ड है, द वर्ड वाज शॉक्ड। हर जो भी देख रहा था इसे, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस तरीके की तीखी बहस उन दोनों के बीच में हो रही है, और सारे कैमरास वहां लगे हैं। पूरी दुनिया की नजर थी विशाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इस वार्ता पर, इन दोनों बड़े लीडर्स की मीटिंग के बीच में, और वहां इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सारे खड़े हैं ओवल ऑफिस में, सारे कैमरास हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं, उसके बीच ये होता है। और सिर्फ 7 मिनट का, ये जो 7 मिनट का एक्सचेंज है उनके बीच में, जो पब्लिक स्पैट है या फायरी एक्सचेंज आप कहेंगे, जिस तरीके की बहस उन दोनों के बीच में हुई है, और दोनों साइड पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे थे। आवाज ऊंची की गई जब जेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को बोला कि आप आवाज ऊंची करके बात करेंगे तो क्या झूठ सच हो जाएगा। इस तरीके की बातें हो रही है। वहां प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो देखा हम लोगों ने, इसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है, ये बैकग्राउंड समझने की जरूरत है विशाल, कि ये क्यों ऐसा हुआ। इन सब के मध्य में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल डील है जो कि साइन नहीं हुई, जिसे साइन करने की पूरी आशा प्रेसिडेंट ट्रंप रखते थे। उन्होंने ये बात पहले कही भी, प्रेसिडेंट जेलेंस्की के आने के एक दिन पहले भी उन्होंने मीडिया से ये कहा कि ये डील साइन करना चाहते हैं। देखिए ट्रंप जिस तरीके से इस पूरे चीज को सुलझाना चाहते, एक तरह से तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप ने बार बार पुतिन के बारे में क्या कहा है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में ये कहा है कि वो उसके पुराने मित्र हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, वो युद्ध विराम लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग मरना बंद हो जाएं। मगर एक तरह से वो ये कहते हैं, दूसरे तरीके से वो ये भी बात कहते हैं कि $350 बिलियन
अमेरिका ने यूक्रेन को ये लड़ाई के लिए दी है पिछले 3 साल में, तो अमेरिका को वापस क्या मिला? वापस क्या मिला उसके लिए ये डील टेबल पे रखी गई थी, जो कि मिनरल डील थी, जो कि बहुत अमेरिका के लिए लाभदायक होती। ये डील साइन करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं थे, सिंपल युद्ध विराम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि गुस्से में ये सब वहां बैठे हुए थे, बहुत तनाव था और वो तनाव फूट पड़ा। बिल्कुल, और वो गुस्सा सिर्फ कल ही नहीं, इससे पहले भी लगातार देखा जा रहा था। दीपक बोरा जी हमारे साथ जुड़े, हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी ज़ेलेंस्की को तानाशाह कह चुके थे, कह रहे थे कि चुनाव से भाग रहे हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन जब ओवल ऑफिस में दीपक बोरा जी दोनों नेता बैठे और जिस तरह से बातचीत हुई, अब इसके आगे क्या होगा इस तीखी बहस के बाद? ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि ट्रंप बहुत ही आक्रामक नेचर के जाने जाते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? आभारी हूँ साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। आपने जनरल सिवाज को बिठा रखा है और आपके साथ आपके एडिटर हैं और फिर आरती टिक्कू सिंघारी। मेरी क्या जरूरत है, मैं जाके चाय पीता हूँ। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। नहीं, मुझे 53 साल हो गए डिप्लोमेसी में। अब इतना बता देता हूँ सर कि मैंने अपने करियर में भी डिस्कशंस देखी हैं जहां पर सहमति नहीं होती, गर्म होते हैं दोनों, लेकिन कभी भी हम लोगों ने आवाज ऊंची नहीं की। आवाज ठंडी होती है। देयर इज आइस इन द एयर। जो मिसेस गांधी मिली थी रिचर्ड निक्सन से 71 में, बर्फ जम गई थी, लेकिन ऊंची आवाज नहीं और गाली गलौज नहीं जो इसने किया। इसमें सर मैं 2 चीजें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, बट ही इज आल्सो द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। उनके मुकाबले का दुनिया में उस देश का कोई मुकाबला नहीं है। फिर वो नाराज इसलिए हुआ कि यूक्रेन ने उसको बोला, ये जो सर्कस का जोकर है जो कहता मैं वहां का प्रेसिडेंट हूं, कि हम तो शुरू से अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं था। क्या बेहुदा किस्म की बातें करता है। सारी यूरोप और अमेरिका की मदद लेके तो वो लड़ रहा था, नहीं तो खुद कहता है कि मुझे पुतिन ने कहा था कि 3 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो जाती अगर तेरे पास पश्चिमी हथियार ना होते। अब मैं सर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोगों की ट्रेनिंग ये होती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। शांति कौन चाहता है यूक्रेन में? प्री ट्रंप अमेरिका नहीं चाहता है, यूरोप नहीं चाहता है, नेटो नहीं चाहता है, यूक्रेन नहीं चाहता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये जो जोकर है सर्किस का, ये क्या चाहता है? इसको नेटो मेंबरशिप चाहिए। इसका देश तो खत्म हो गया, और अगर अब ये कहेगा कि जी अच्छा चले जाने दीजिए नेटो मेंबरशिप, वो फिर इसके लोग ही इसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। तो ये कहता है कि जी मैं इस्तीफा भी दे दूंगा पर मुझे नेटो की मेंबरशिप चाहिए। फिर व्लादिमीर पुतिन, जिससे ये बेहद नफरत करता है, व्लादिमीर पुतिन आए मेरे सामने, घुटने टेके, माफी मांगे, मेरे जूते साफ करे, और फिर हम इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पनिश करेंगे। और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होगा मेरे देश को वापस बिल्ड करने में, वो रूस मेरे को देगा। ये चीजें कहाँ है? और फिर सबसे बड़ी चीज सर, कि जो वेस्टर्न ग्रेवी ट्रेन है सर, सुनिए इसको ध्यान से, जो पैसा आ रहा है, जो हथियार आ रहे हैं, वो नहीं रुकने चाहिए सर। मैं अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा। यूक्रेनियन हथियार वहां तक, अमेरिकन सप्लाइड वेपन्स जो यूक्रेन को दिए थे वहां बिक रहे हैं। कैसे सर? कहां से आ रहे हैं ये हथियार? ये जो आदमी है करप्ट टू द कोर, जिसका नाम है ये सर्कस का जोकर। अब डॉन ऑफ अमेरिका क्या चाहता है? उसको रेयर अर्थ चाहिए, जैसा मैडम ने अभी कहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक वो चीन से ले रहा है, और वो कहता है हमने इतना पैसा खर्च किया, 350 बिलियन, चले 350 नहीं, 300, 250, 270, आप कल सुबह तक इस पे बहस करिए। वो कहता है वो मुझे पैसे वापस चाहिए। भाई अमेरिका जो कुछ करता है उसकी कीमत चाहिए उसको। फिर पीस डील क्यों चाहता है? सर आपने अमेरिकन कंपनीज को बोला आके यहाँ हम जो मिनरल्स हैं उनकी खोज करो, लेकिन जब शांति नहीं होगी तो कैसे होगा? अफगानिस्तान का तो हमने सुना 1 ट्रिलियन में 12 शून्य होते, $1 ट्रिलियन के वहां मिनरल्स हैं, निकल कुछ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे शांति नहीं है। और फिर ट्रंप ये भी कह रहा है कि नेटो मेंबरशिप को भूल जाओ, आप एक कमेडियन हैं, आप जाइए छोड़ के। पुतिन क्या चाहता है? पुतिन चाहता है फ्रेंडशिप विद अमेरिका, चाहता है ये जो प्रतिबंध लगे हैं ये खत्म हो जाए और आप लोग स्वीकार करें कि मैं भी एक ग्रेट पावर हूं और रशियन फेडरेशन को आप थ्रेटन मत करिए। और ये भी चाहता है कि ये जो जोकर है इसको बाहर निकाल दिया जाए, नेटो मेंबरशिप। चलिए दीपक बोरा जी हमारे साथ बने रहेगा, आपने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाच भी हमारे साथ जुड़े। अश्वनी जी, इसमें यूक्रेन को क्या मिलेगा? यूक्रेन आगे क्या करेगा? अमेरिका अगर मदद पीछे खींच लेगा तो फिर यूक्रेन कैसे लड़ पाएगा रशिया के साथ में? आपको क्या आगे दिखाई दे रहा है? क्या यह युद्ध रुकेगा या फिर यूक्रेन पर और ज्यादा दबाव अमेरिका की तरफ से बनाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो विशाल, पहले हम देखते हैं कि क्या यूक्रेन अकेला लड़ सकता है यूरोप की मदद से,
ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका की मदद बहुत ज़रूरी है अगर ज़ेलेंस्की लड़ना चाहता है पुतिन के साथ। क्योंकि सच्चाई है कि जो हथियार 35 से 40% अमेरिका ने दिए हैं और 50 से 55% ही करीब-करीब यूरोप ने दी। यूरोप की आज की प्रॉब्लम क्या है? उनके पास जो हथियार है उनकी कमी है और उनके पास वार वेस्टेज रेट जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है। इसका मतलब कल को उनके ऊपर हमला हो जाता है तो उनके पास मिनिमम डिफेंड करने के लिए हथियार नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यूक्रेन को लड़ना है रूस से तो उसको अमेरिका के हथियार चाहिए, ये बॉटम लाइन है। क्या ये डील दोबारा होगी? मुझे लगता है कि अब ये डील दोबारा होगी, मगर अभी बीच में प्रेशर आएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की समझ नहीं रहे हैं एक चीज को। वो बार बार कहें कि सीज फायर मैं नहीं करूंगा जब तक एक प्रकार मुझे सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती। वो क्वेश्चन बाद में आता है, क्योंकि सच्चाई है कि पुतिन की भी अपनी रेड लाइंस हैं। वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है वो नहीं ज्वाइन करे यूक्रेन नाटो के अंदर, जो इलाका उन्होंने जीत लिया वो वापस नहीं देंगे। तो सच्चाई यह है कि उधर रेड लाइन है, इधर ज़ेलेंस्की कुछ चाहता है तो ये वाया मीडिया निकलेगा। मगर जो कल बातचीत थी वो बेसिकली जो रेयर अर्थ जो मटेरियल डील है उसके ऊपर थी, और वो डील तो दोनों के लिए फायदा है, क्योंकि रूस के लिए भी और एक प्रकार से ज़ेलेंस्की के लिए भी। वो इसकी वजह यही थी क्योंकि ये सच्चाई अगर ये डील होती है तो ये जो रेयर एर्थ मटेरियल है कर सकता है अमेरिका। उसका जो पैसा आएगा वो पैसा तो जो उसने पैसा लगाया है वो मिलेगा वापस अमेरिका को। प्लस दूसरा क्या है कि अमेरिका चाहता है कि अगर ज़ेलेंस्की के बेसिकली यूक्रेन में अगर डेवलपमेंट होनी है तो इस पैसा का इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी डील थी, मगर जिस प्रकार से गर्मा गर्माई होने के कारण ये डील साइन नहीं हुई। ये डील दोबारा साइन होगी क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अश्विनी सिवाल जी बता रहे हैं कि ये डील जो कल नहीं हो पाई इस तीखी बहस के बाद उस पर दोबारा साइन होंगे, दोबारा बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन मेघा प्रसाद, यहां पर सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की ने क्या सोचकर इतनी तीखी बहस की, क्योंकि ज़ेलेंस्की को ये जरूर पता होगा बिना अमेरिका की मदद के वो रूस के साथ लड़ नहीं सकते हैं, अमेरिकी मदद उनको चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जब अमेरिका में है, उनके सामने बैठकर, उनके पूरे एक तरह से कैबिनेट के सामने बैठकर ज़ेलेंस्की ने जो तेवर दिखाए हैं उसके पीछे क्या उनकी लोकल पॉलिटिक्स का भी कुछ रोल हो सकता है कि क्योंकि वहां पे चुनाव कराने का प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है? देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरीके के वक्तव्य या जिस तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने अभी तक दिए हैं, उससे ये एक बात समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नो लव लॉस्ट फॉर ज़ेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप का ज़ेलेंस्की की तरफ किसी भी तरीके का झुकाव नहीं है। वो अगर एक तरफ ज़ेलेंस्की है और एक तरफ पुतिन है तो उनका रुझान पुतिन के तरफ ही है। वो अपनी दोस्ती पुतिन से ही उसी के बारे में बार बार बात करते हैं और वो जैसे कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं युद्ध विराम ला रहा हूं, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके पास वो कार्ड्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि यू डोंट हैव द कार्ड्स, आपके पास कार्ड्स नहीं है, आप अकेले ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अकेले इसे रोक नहीं पाएंगे, आपको मेरा साथ है, इसलिए शायद आपके लिए बात बन जाए। और ये पुतिन से अपनी दोस्ती, पुतिन से फोन कॉल, पुतिन से ये कहना कि भाई ये युद्ध विराम के लिए वो टेबल पर पुतिन को लेकर आ रहे हैं, इस डील को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मगर एक तो ये बात हुई, दूसरी ये बात है विशाल कि जब हम समझते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि इतनी हेट्रेड है ज़ेलेंस्की को पुतिन के लिए, इतनी नफरत है, इस नफरत में इस तरीके की डील या बातचीत को आगे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखिए अपना साइड तो पहले चुन लिया है। ये हम लोग पिछले 10, 15, 20 दिन से ये बात समझ रहे थे। इनफैक्ट कैंपेन के समय में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि वो अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए पुतिन के साथ ये कहा था कि वो जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे उनकी एक प्रायोरिटी रहेगी कि ये युद्ध को खत्म किया जाए, युद्ध विराम लाया जाए। जब आए ज़ेलेंस्की कल वहां पर तो वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थे। दो तरीके की प्रेशर थी। प्रेशर पहली ये थी कि उनको वो रेयर अर्थ मिनरल और ये जो लिथियम टाइटेनियम जो मिनरल वाली
डील है वो डील साइन करने की प्रेशर थी, जिसके लिए वो पहले ये बोल चुके थे कि वो इस तरीके की वो डील साइन नहीं करना चाहते हैं। उतना एक्सेस वो अमेरिका को अपने मिनरल्स तक नहीं देना चाहते हैं, पहली बात। और जिस तरीके से ट्रंप इस डील के बारे में बात कर रहे थे ज़ेलेंस्की के आने के पहले, ऐसे लग रहा था जैसे बात तो बनी गई है, डील होनी ही है। तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो इस डील की तरफ अपना मतलब ये दिखाया कि वो डील नहीं चाह रहे हैं, उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। दूसरी बात है कि आप पहले तो इस बात के आप प्रेशर में रह ही रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो सिंपल सीज फायर ऑफर किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ना आप सीज फायर के लिए हाँ कह रहे हैं, ना ये मिनरल डील के लिए हाँ कह रहे हैं। उस तनाव के अंदर आप आ रहे हैं व्हाइट हाउस में, आपको पता है कि आपके ऊपर दोनों चीज को एक्सेप्ट करने की प्रेशर है और आप दोनों को मानना नहीं चाहते हैं। तो वो तनाव का आपने देखा, जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था तनाव का, और मुझे लगता है कि जब जेडी वैंस घुसे तब ये जाकर पूरी जो बहस है वो तीखी हो गई। वो भी सिर्फ इतना कि आपने हमें धन्यवाद नहीं किया अमेरिका को, बार बार चीज पर ये पूरी बहस शुरू हुई है। हाँ। दीपक बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक बोहरा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा? यूक्रेन के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं और अमेरिका के पास क्या कदम है जो वो उठाएगा? पुतिन तो बहुत खुश हो रहे होंगे आज कल का जो ये घटनाक्रम हुआ है इसे देखकर। रशिया में तो जश्न का माहौल होगा कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर कि जब ये अग्रीमेंट होती है, ज़ेलेंस्की क्यों गया था व्हाइट हाउस में? वहां की चाय पीने? सर ये जो अग्रीमेंट्स होती हैं ये लास्ट मिनट पे डिसाइड नहीं होती हैं, ये पहले डिसाइड होती हैं। हम लोग बातचीत करते हैं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होता है, काउंटर ड्राफ्ट आते हैं, मैंने कई किए हैं ऐसी अग्रीमेंट्स, और फिर हमारे बड़े नेता लोग आके उसको साइन करते हैं। कुछ बच जाता है लास्ट मिनट पे करते हैं, लेकिन ये तो लगता है कि साइन करने गया ही नहीं था, तो फिर गया क्यों था? इतना जो कैपिटल एक्सपेंड किया है अमेरिका ने, मार्को रूबियो ये वो, उसके जो क्या नाम है उसका सर, वो कॉर्नफ्लेक्स वाला जो स्पेशल एडवाइजर है यूक्रेन के लिए अमेरिका का, केलॉग, स्टीव क्या जो भी उसका नाम है, तो इन लोगों ने भी बहुत कैपिटल एक्सपेंड किया है कि भाई अब ये होगी अग्रीमेंट, चलिए आप जाइए व्हाइट हाउस में, आपको सम्मानित किया जाएगा, साइन करिए। लेकिन फिर पलटा, बिल्कुल बाजी उलट गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब ने झूठ बोला है कि मैं साइन करने को तैयार हूं। अगर कहते मैं नहीं साइन करूंगा तो उसको व्हाइट हाउस में आने ही ना देता कोई सर। इन्होंने ये धोखा किया है और ट्रंप माफ नहीं करता। He neither forgives nor forgets। अब ये यूरोपियंस को भूल जाइए। कौन सा यूरोपियन है सर? मैं ये सवाल पूछता हूँ आपके एडिटर साहिबा से और जनरल साहब से और मैडम टिक्कू जो आ रही है, कौन से यूरोपियन है जो कहेगा ठीक है यार हमारे 100 मिलियन मर जाएं अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है यूक्रेन की खातिर, क्योंकि यूक्रेन मेरी जान है। उनको पता भी नहीं यूक्रेन कहां पर है, कोई नहीं मरने को तैयार है वहां पर। ये कहने के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आगे बढ़ो, मरो, आखिर तक जाओ, कोई बात नहीं, लड़ते जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ज़ेलेंस्की, मेरा मानना है सर, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, जनरल साहब मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, ये शायद यूक्रेन वापस नहीं जाएगा सर। गया तो कू होगा। और एक फाइनल चीज सर, आप अपने सोर्सेज से करिए, मैं तो कल रात सारी रात जागता रहा। एक होता था इनका वैलेरी ज़लूशनी, जो इनका आर्मी चीफ था, उसको ज़ेलेंस्की ने बाहर निकाल के लंदन में एम्बेसडर बना दिया है। वो लंदन छोड़ के वापस यूक्रेन जा रहा है। मिलिट्री को I'm waiting for you। अभी कहां पर है ज़ेलेंस्की? दीपक बोहरा साहब, आपको इस बात की जानकारी है? जब व्हाइट हाउस से वो निकले, अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि उनको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, बाहर भेज दिया, क्योंकि आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई, ना मिनरल डील पे साइन हो पाया, और ना ही ओवल ऑफिस के बाद जो अलग से बैठने की परंपरा है जब राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, वो भी मीटिंग नहीं हो पाई। ओवल ऑफिस पे जो भी कुछ कैमरे के सामने दिखा उतना ही आखिरी रहा। उसके बाद कहां पर गए ज़ेलेंस्की? सर मेरा ये मानना है कि ब्लेयर हाउस में नहीं गए थे, जहां पे ट्रेडिशनली हेड्स ऑफ स्टेट को रखा जाता है। अमेरिका जब आप जाते हो ना सर, एक चीज, मैं तो उस देश में रहा हूं सर, हर साल 2 बार जाता हूं वहां पर, एक चीज समझ लीजिएगा, उनकी बराबरी करने की कोशिश मत करिए। बराक ओबामा ने भी ये चीन को वार्निंग दी थी, जब चीन ने कहा हमारी मिलिट्री आपकी तरह है, बराक ओबामा साहब बोले अमेरिका हैज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियड। मेरा मुकाबला करने की कोशिश करूंगा, बहुत टोकूं, और ये बिल्कुल सही है सर, उनका मुकाबला कोई नहीं कर। बट ज़ेलेंस्की को यूरोपियंस ने बताया कि तू तो नेपोलियन का बाप है, तू ये है, तू वो है, तू तो हैनिबल है, तू ये, और इतना बड़ा बहादुर है, और फिर ऐसे ऐसे अपने डोले दिखाता है। वो यूएस कांग्रेस को बेवकूफ है सर, उसने यकीन कर लिया ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं। यूरोप का मकसद है कि भी किसी तरह से रूस को कमजोर करो।
रूस का मकसद है अगर तूने मुझे कमजोर करने की कोशिश की तो फिर मैं अपना ब्रह्मास्त्र उसका प्रयोग करूंगा। और सफर कौन करेगा? यूक्रेन तो क्या, बाकी यूरोप को जो हानि होगी, यूरोप तैयार नहीं है उसके लिए। इसीलिए जेलेंस्की अब अकेला पड़ गया। कहां पर है? ही इज नॉट इन ब्लेयर हाउस। अभी मेरे को मैसेज आया है, मेरा ख्याल वो उनका जो मैडम थी उसकी राजदूत जो यूं यूं कर रही थी वहां पर, काफी परेशान नजर आ रही थी, शायद उसके घर में है। और हाँ सर, और आज वो वापस जा रहा है। अब लंदन जरूर जाएगा, लंदन से आगे कहां जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। शनि सिवात जी, दीपक वोरा कह रहे हैं कि अब जेलेंस्की के लिए खुद के लिए काफी मुश्किल समय शुरू हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीजों को भूलते नहीं हैं और अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ओवल ऑफिस का अपमान किया जेलेंस्की ने, अमेरिका का अपमान किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे? देखो, सच्चाई बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने ये वादा करके आए थे कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों की मौत हो रही है और उनको लगता है कि अगर लड़ाई बंद होती है तो उनको फ़ायदा है। जिस प्रकार से अब ये यूक्रेन की मटेरियल डील थी, इसमें वो चाहते थे कि अगर ये मेटल मिलते हैं उनको, तो जो डिपेंडेंसी है अमेरिका की चीन के ऊपर वो कम हो जाती, क्योंकि वो चाहे आपके वहाँ पर टिटेनियम है, जेरियम है, कॉपर है और लिथियम है, कोबाल्ट है, वो आज अमेरिका चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता है आने वाले समय में ये डील होगी, क्योंकि जेलेंस्की ने माना था ये विन विन थी दोनों के लिए। क्योंकि क्या यूक्रेन अकेला लड़ सकता है रूस के साथ? ये बिल्कुल नहीं लड़ सकता और अमेरिका की मदद के बगैर उसका लड़ना बड़ा मुश्किल है। यूरोपियन कंट्री जो हैं बहुत कमजोर हैं, आज उनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनके पास हथियारों की कमी है, वो कितने दिन तक इसको हथियार दे पाएंगे? तो इसलिए ये सच्चाई है कि अगर जेलेंस्की को सरवाइव करना है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, वो अमेरिका के साथ ये डील साइन करे। देखो, इतना आसान नहीं होगा कि कोई सीज फायर डील रूस के साथ साइन करना, क्योंकि कुछ रेड लाइन जो हैं वो पुतिन की भी हैं। जिस प्रकार से वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करे, जो इलाका उन्होंने जीत लिया है डोनबास का, जापोरिजिया, खारासोन, वो वापस दिया जाए। तो ऐसे में जेलेंस्की सोच रहे हैं कि डील आसान होगी, इतना आसान नहीं होगा। वो एक सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि एक प्रकार सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए। सीज फायर वो नहीं चाहते। वो कह रहे हैं अगर सीज फायर होता है तो इसका इस्तेमाल रूस क्या है एक पोज की तरह करेगा, वो तैयारी करेगा और फिर हमला कर देगा। मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी जो है वो आगे दी जाएगी, वो बातचीत चलेगी, वो इतना आसान नहीं होगा, वो गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे होगी। जब ये दो बातें कर रहे हैं अमेरिका और रूस, अभी उन्होंने दो बातें हो चुकी हैं, एक सऊदी अरेबिया में, तुर्की में, उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन को भी मिलाएंगे। तो ये समझना चाहिए जेलेंस्की को, अगर वो लड़ाई बंद करना चाहते हैं तो अमेरिका के साथ उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो लड़ाई नहीं बंद करना चाहते तो फिर उनको नुकसान है कि वो जीत नहीं पाएंगे। क्या उसको यूरोपियन यूनियन हथियार दे देगा? क्या वो जो इलाका गुमा चुके हैं वो दोबारा जीत सकते हैं? वो नामुमकिन है। उनके अंदर इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि जो 15 से 18% जो इलाका इन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन में गुमा दिया उसको वापस लें। तो मुझे लगता है अभी भी जेलेंस्की को समझना चाहिए कि कॉमन सेंस और ठंडे दिमाग से कि इस जो रेयर अर्थ डील को साइन करें, अमेरिका के साथ रहें, तभी कोई शांति हो सकता है। ये यूरोपियन कंट्री जितना उसको उकसा रही हैं, उनके अंदर इतनी पावर है नहीं, ना इकोनॉमिकली ना मिलिटरी, कि वो यूक्रेन की मदद दें। बातचीत तो कर सकते हैं, मगर क्या वो कॉन्क्रीट रिसोर्स दे देंगे, क्या मिलिट्री हथियार दे देंगे? वो मुझे लगता है देखिए यही बड़ा सवाल है। और इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप बार बार जेलेंस्की को एहसास भी करा रहे थे कि 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद अब तक यूक्रेन को जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से की गई है। अमेरिकी हथियार का जिक्र कर रहे थे, अमेरिकी सैन्य मदद का जिक्र कर रहे थे मेगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि जब बातचीत की टेबल पर आप बैठते हैं या कोई मध्यस्थता कराते हैं तो बहुत सुलझे हुए तरीके से आपको बातचीत करनी होती, क्योंकि जरा सी बात पर बात बिगड़ जाती, जिसका उदाहरण हमने व्हाइट हाउस में देखा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वांस को भी थोड़ा नरम रहना चाहिए था यहां पर जेलेंस्की के साथ बातचीत में? और क्या जेलेंस्की पहले से ही मूड बनाकर आए थे कि उन्हें इसी एग्रेशन में बातचीत करनी है?
आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देती हूँ कि जेलेंस्की ने यहाँ आने के पहले, डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात के पहले, व्हाइट हाउस आने के पहले जो स्टेटमेंट्स दिया है विशाल, वो ज़रूरी है हम लोगों का समझना उस बारे में कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस आने के पहले उन्होंने उस डील के बारे में कहा कि उस डील में यूक्रेन के लिए कुछ नहीं है। पहली बात उन्होंने ये भी कहा व्हाइट हाउस आने के पहले कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन के साइड में खड़े हैं। तो ये आप देखिए, ये तो ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जेलेंस्की जब वहाँ आए तो ये सोच कर आए कि उनके लिए इस पूरे वार्ता में, इस मुलाकात में, इस डील में कुछ भी नहीं है यूक्रेन के लिए। हर चीज़ जो है वो पुतिन के फेवर में है। ट्रंप जो है पुतिन के साइड में खड़े हैं, ट्रंप जो है पुतिन की फेवर कर रहे हैं और उसकी ही बात उसके सामने कर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि इस तरीके की बातचीत, जो गर्मी देखी गई है, जिस तरीके से तीखी बहस हुई है इन लोगों के बीच में और मीडिया के सामने, ऐसा जैसे मैं कह रही थी कि ऐसा कभी भी व्हाइट हाउस के इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। जो बड़े इंटरनेशनल जर्नलिस्ट लोग हैं उन्होंने कल से जो एक्सप्रेस किया है, अपनी प्रतिक्रिया जो दी है, उन सब का यही कहना है कि ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक्चुअली उनके आंखों के सामने ये ऐसा दृश्य चल रहा है, ये हो रहा है, इस तरीके की नोकझोंक हो रही है, बकझक हो रही है। दो प्रेसिडेंट के बीच में, एक उपराष्ट्रपति भी बैठे हैं वहां, हर ये लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और इन सब के बीच में उनको फिर रवाना कर दिया जाता है कि भाई उसके बाद की सारी चीजें रद्द कर दी जाती, कोई और मीटिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, आप निकलिए यहां से जाइए। मुझे लगता है विशाल, आप जो सवाल कह रहे थे, अगर मैंने सही देखा, सुबह आते वक्त भी मैं देख रही थी, शायद वो एक मीडिया हाउस गए थे, एक मीडिया चैनल गए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। जेलेंस्की निकले हैं वहां से, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि सबको नर्म होना चाहिए, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरीके का यूनिक व्यवहार है, वो आप लोगों ने देखा होगा। वो रोकते नहीं है, जो सोचते हैं वो कह देते हैं। एक कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तमीज होती है, उस तमीज से ही आप वो डिसेंसी से ही काम करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े बेबाक हैं, वो अपनी बातें जिस तरीके से रखते हैं बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। और ये पहली बार नहीं, देखिए इस बार तो गुस्सा फूट गया, ये लड़ाई हो गई इन लोगों के बीच में। लेकिन आपको मैं अगर ध्यान दिलाऊं तो पिछले एक महीने में ये लगभग तीसरी बार हुआ है। जो यूके प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके साथ भी थोड़ी सी तीखी बातचीत हुई थी। और हाँ, जब मैक्रोन आए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक्चुअली अपना हाथ बढ़ा के प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ पकड़ा कि भाई इसके आगे मत कहिए, वो दृश्य है। तो ये चीजें हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनका एक अपना स्टाइल है, एक यूनिक स्टाइल है, वो उसमें बात करते हैं, उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है। भाई हमने उनके पिछले प्रेसिडेंटशिप में भी देखा, 4 साल कैंपेन के दौरान देखा, वो क्या शब्द यूज करते हैं, व्हेन ही सेज द स्टूपिड प्रेसिडेंट, वही कहते हैं बाइडेन के बारे में, बार बार उनको उन्होंने वैसे ही रेफर किया है। तो भाई प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अपना तरीका है, वो तरीका आप एक्सेप्ट करिए, आप तो ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करिए तो प्रॉब्लम है। भाई आप सारी चीजें को एक साइड रखिए विशाल। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आपको उससे डील करना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स वो बैठा हुआ है। अब वो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके बराबरी के हैं नहीं। लेकिन मेघा प्रसाद, यहाँ पर जेलेंस्की ने क्या इस बात को समझा नहीं कि वो ट्रंप के सामने बैठे हैं? हालांकि वो जानकर गए कि डोनाल्ड ट्रंप हैं और इस समय जो इनके फैसले हैं वो बहुत त्वरित फैसले ले रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में बड़े फैसले ले रहे हैं, अपने वादों को पूरा कर रहे हैं और उसी में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना भी उनका एक चुनावी वादा था। दीपक वोरा जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि ये जो उनका 4 साल का कार्यकाल है इसमें वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे? उनके नए दोस्त बन रहे हैं, नए दुश्मन बन रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी किसी चीज का केयर नहीं कर रहे हैं कि कौन क्या कहेगा, क्या करेगा। उनके मन में जो आ रहा है वो सीधे तौर पे करते जा रहे हैं और सबसे बड़ा उदाहरण जेलेंस्की है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं सर, आपके एक्सपर्ट से और आपसे भी। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस गया क्यों था? अगर इसने मिनरल डील साइन नहीं करनी थी। वहां की चाय बड़ी अच्छी है, मैंने तो पी है ओवल ऑफिस में 3 बार। चाय भी पिलाई कि नहीं पिलाई है? वोरा साहब, आप तो ज्यादा इस तरह की मीटिंग्स को जानते होंगे, क्योंकि रिसीव करते ही ओवल ऑफिस से बाहर आ गए ये। हाँ, तो क्यों इसको बुला, क्यों गया है वहां पर?
नहीं वोरा इसको साहब, ये पता नहीं तो था। सर अपने आपसे ही राजू ने समझना जवाब चाह रहे, आपको क्या लगता है सर, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि क्या सोच कर गया वो वहां? ये गया था डील साइन करने के लिए, और बीच में इसको यूरोपियन ने कहा डील साइन करेगा तो हमसे बात मत करियो। वहां जाके फिर हीरो बन गया। यार कम ऑन, आपने शब्द यूज किया था बाकी चैनल पर, सर मैं सुबह से जाग रहा हूँ, वर्ल्ड लीडर्स में बहस हो गई। ये कौन सा वर्ल्ड लीडर है ज़ेलेंस्की? 10,000 की तो इसकी फौज बची है, पैसे है नहीं इसके पास, इसका देश बर्बाद हो गया। कौन सा वर्ल्ड लीडर है ये? सर भूटान का वर्ल्ड लीडर है, वनुआटू का वर्ल्ड लीडर है। क्या वर्ल्ड लीडर? भारत वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका वर्ल्ड लीडर, रशिया है, चाइना है। ये कहां से वर्ल्ड लीडर बन गया? बस मेरे को लगता है ये गया था वहां दुनिया को दिखाने के लिए, मैं तो जा रहा हूं टाइगर, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और फिर यूक्रेन के लोग, जैसा ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प झूठ कई बार बोलते हैं, एग्जैजरेट करते हैं कि तेरी 4 या 5% की पॉपुलैरिटी है। वो मेरा ख्याल सर, अगेन एंड अगेन मेरा मानना है, जस्ट गॉट अ मैसेज, ही इज नोवेयर टू बी फाउंड। कहां पे है अब आप पता लगाइए सर। हम अभी भेजते हैं अपने स्पाई मास्टर को पता लगाने, और CIA इज ऑलरेडी एक्टिव सर। अमेरिकन लाए थे इसको, वोरा जी कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अभी अमेरिकन कहां पर निकालेंगे। है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बहस दोनों नेताओं के बीच में हुई है उसका असर दुनिया पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।